अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो समझने में शायद थोड़ी मुश्किल हो तो इसको गौर से सुनिएगा। इन माई ऑब्जर्वेशन इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने पोटेंशियल पे राइज नहीं करते। दे राइज टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट एंड वो एक्सपेक्टेशंस कुड बी एनीथिंग, खानदान, दोस्त, वर्क प्लेस या कल्चर भी इवन। एंड इनमें से हर एक चीज़ हमारी पर्सनालिटी को शेप करती है इन वेज वी डोंट इवन रियलाइज। फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न और मे बी इवन बिफोर दैट हमारे साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस अटैच होना शुरू हो जाती हैं। इट कुड बी टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, गेट गुड ग्रेड्स, फाइंड अ स्टेबल जॉब, फिट इन या इस तरह की कोई भी और चीज़। एंड आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम ये बाहर का जो शोर है ये हमारे अंदर का डायलॉग बन जाता है एंड हम दूसरों के अप्रूवल के लिए ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। We start to measure our worth from someone else's eyes, and that is why most people don't actually live their lives. They just live to the expectations of others about them. They just live the life that is expected of them. लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा इशू है and that is कि it does not last because ये externally motivated होता है. And the moment you start to feel unseen या underappreciated, आपकी energy to do anything गायब हो जाती है. The moment the applause stops, the motivation starts to fade. एंड ये वो पॉइंट है कि जब लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आई डोंट रियली फील लाइक माई सेल्फ एनी मोर और आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग विद माई लाइफ, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वॉज नेवर बिल्ट ऑन पर्पस, it was built on expectations. Rising to potential on the other hand requires completely different things. उसके लिए आपको बहुत गहरे reasons चाहिए होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझें and sit down with your thoughts and ask कि what truly drives me, what do I stand for and what kind of a person do I want to become. And once you start that journey, the motivation becomes internal. And उसके बाद it doesn't matter कि लोग notice कर रहे हैं कि नहीं. And that journey does not depend on any type of praise or validation. वो बहुत मजबूत होती है and honestly almost unshakable. You might have bad days from time to time, of course you will. But आपके लिए वापस ट्रैक पे आना बहुत आसान हो जाता है because आपकी बुनियाद दूसरों के अप्रूवल पे नहीं बनी होती, आपकी बुनियाद अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बनी होती है. Now here's where things start to get a bit tricky. Most of us do not really understand our potentials and that's not really our fault. हम इर्द-गिर्द देखें तो there is not a single system that I can name जो कि पर्पस और पोटेंशियल पे काम करता है. हर सिस्टम जिसमें हम बड़े होते हैं, बी इट फैमिली, कल्चर, वर्क प्लेस या एजुकेशन, none of it works on purpose and potential. Everything around us works on expectations. एक क्लासरूम के अंदर हमें याद करना सिखाया जाता है, ना कि सोचना. And we are rewarded for obedience and not curiosity. And we are told that success looks a certain way, a job, a title, or a degree. And everything outside that framework is called risky. And इसको भी और चार चांद लगाता है comparison. कि अपने कज़न को देखो, अपने क्लासमेट को देखो, अपने कॉलीग्स को देखो, फलाने के आपसे ज़्यादा नंबर आए हैं, फलाने ने कोई गाड़ी खरीद ली है, फलाना तो बड़ों के सामने बोलता ही नहीं है. And this cycle continues. You're always trying to compete with others and prove your worth. And ये सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं है, हमारे काम में भी ऐसे ही होता है. We are expected to meet deadlines, hit targets and सिर्फ उतना काम करना कि हमसे कोई सवाल ना हो. It is basically doing the bare minimum, लेकिन उसको उस तरह से प्रेजेंट करना कि लगे कि अगले ने एफर्ट किया. And this is the tragedy. Most people spend decades like that, just surviving, not really thriving. And even at my age, I have seen these patterns repeat so many times. People who are capable of extraordinary things, लेकिन क्योंकि उनकी environment ने कभी उनसे वो expect ही नहीं किया, they never ever discovered their own true potential. Imagine if all the time we spent trying to fit in was actually spent trying to figure ourselves out. हमारी जिंदगियाँ कितनी मुख्तलिफ दिखती. मैंने पर्पस और पोटेंशियल पे पूरी एक सीरीज बनाई थी, but it was the first one, तो please don't mind the quality. लेकिन उसको देखिएगा जरूर ताकि आपको समझ आए why this topic matters so much to me. Because once you understand your purpose and discover your potential, you realize कि how broken most of our systems are. We need systems that focus on the individual identity, not these systems जो लोगों को रेवड़ की तरह ट्रीट करते हैं. We need educational systems that nurture curiosity, not conformity. We need workplaces that reward creativity and fulfillment, not just meeting deadlines. And we need family systems that allow individuality, not just comparison. हमें एक ऐसे माशरती निज़ाम की ज़रूरत है कि जहाँ पर लोगों को अपने आप को डिस्कवर करना इंकरेज किया जाए and not one where they are told what to be. क्योंकि अगर हमने इसको चेंज नहीं किया तो हम वैसे ही लोग बार बार प्रोड्यूस करते रहेंगे जो कि पेपर पे तो सक्सेसफुल लग रहे हैं बट वो अंदर से बिल्कुल खोखले हैं. People who smile for photos but question their life when they are alone. This is not just about motivation. This is about meaning. किसी भी इंसान की असल ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस मीट करने से नहीं आती, वो अपने पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने और अपने पर्पस पे काम करने से आती है. एंड दुनिया चंद लोगों के अपना पोटेंशियल डिस्कवर कर लेने से चेंज नहीं हो जाती. इट चेंजेस जब अवाम अपने पर्पस को डिस्कवर करती है एंड उसकी तरफ चलना शुरू करती है, नो मैटर कोई देख रहा है या नहीं. सो मे बी इट्स टाइम दैट वी स्टॉप आस्किंग कि हमारी एनवायरनमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है एंड वी आस्क आवरसेल्व्स कि हमारा पोटेंशियल हमें कहाँ तक लेके जा सकते हैं एंड मेरे पर्पस की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है. एंड दैट इज द शिफ्ट जो दोनों पार्टियों को सेपरेट करता है, द वंस हु राइज टेम्पररीली
and the ones who rise permanently. And that shift starts within you. And a bonus point for all the youngsters is कि अगर आपको अपने पर्पस के बारे में अभी नहीं भी पता तो build a circle around yourselves of the people कि जो आपसे अच्छी expectations रख सकें, जो कि आपको फोर्स करें अपना पोटेंशियल डिस्कवर करने पे। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको दोबारा देखें, एंड अगर वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर दें। एंड आजकल यूट्यूब ने एक हाइप का बटन डाला है टू इनकरेज स्मॉल क्रिएटर्स, तो उस बटन को भी प्रेस कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ and to see relevant content. Thank you so much for watching. With love, Ali.